we are providing both English classes separately, bilingual classes separately in the single course in the single amount. इसी amount में हम दोनों courses को available करा रहे हैं. See what are the different subjects or the departments where you can do your MSc under Plan Science. अगर आप Plan Science से opt कर रहे हो तो कौन-कौन से department में आप MSc कर सकते हो. See first one is, so why should you listen to us? Like क्यों आप हमें सुनना होगा कि किस लिए सुनोगे. It's because of the result that we have provided in the previous years consistently. अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2025 का रिजल्ट देखोगे तो we have produced like highest number of top rankers in this exam for every subject including the Plan Science. अगर Plan Science में देखोगे, so these are the numbers. So in which books we have to invest our money? क्योंकि देखो हर एक बुक मिनिमम 600 से 700 में आएगा. Like you have to spend at least like 600 to 700 for a single book. 60 to 65 क्लासेस में हर एक टॉपिक मैं क्लैरिफाई करा दूंगा और हर एक टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगी. And what will be the duration? Duration will be like 1.5 hours to 2 hours maximum. They come up with the agriculture current affairs PDF that will be available for everyone who have enrolled to our course. So this will be a PDF. ये PDF रहेगा ऐसे जिसमें like 15 to 20 pages में सब कुछ कंपाइल करके सब कुछ इंक्लूड करके हम एक बार में दे देते हैं लास्ट 1 month before so that they can rigorously revise. If you take the Plan Science course, you are not only getting the content of the Plan Science but also you will be getting the content of. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. So what is this video all about? So this video is about the 10 months plan to crack the ICRPG exam 2027 in the subject of Plant Sciences. Yes, so in this video I'm going to give you complete details about the 10 months strategy so that you can crack the upcoming ICRPG exam in the subject of Plant Sciences. And ये complete video जो है इसको मैं bilingual में रखने वाला हूँ. So I'll be explaining in both Hindi and English. So the students who are wanting to get in English, you will be able to get it. And also students जिनको हिंदी समझ में ज़्यादा आता है उनके लिए भी यही एक वीडियो है. So if you are very serious about cracking this upcoming ICRPG exam 2027 and 2028, this video is for you. So don't miss it. Watch till the end and get the benefit. So before I start, let me just have a quick introduction about myself. अगर कुछ लोगों के लिए नया होऊंगा मैं. So I am Ari Prasad, a PhD student from Indian Agriculture Research Institute from the Department of Seed Science. So I have done my UG from US Dharwad and I have cracked this ICRPG exam in the year 2020 with All India 48th rank and then allotted to IRN New Delhi for the Masters. And I have completed my 2 years of Masters from IRN New Delhi in the Department of Seed Science and then I have again cracked the ICAR PhD exams with All India 2nd rank and in between I have also qualified the IBPS A4 mains. Plus, after completing this ICAR PhD exam, then I cracked the ASRB NET exam in the year 2023. And regarding the Plant Science course and regarding my teaching experience, so I am with Agri Addict since the beginning, since I am the founder, and I have overall of 4+ years of experience in the teaching. I mainly deal with genetics, seed science, plant physiology, plant biochemistry, and biotechnology. And I'll be the main mentor for you for these subjects, which we are successfully running from last 4 to 5 years. Okay, so without making any delay, let's get started and I will let you know about the what is the plan, what is the tips that you can utilize to crack these exams in the upcoming year. So before that, so why should you listen to us? Like क्यों आप हमें सुनना होगा कि किस लिए सुनोगे? It's because of the result that we have provided in the previous years consistently. अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2025 का रिजल्ट देखोगे तो we have produced like highest number of top rankers in this exam for every subject including the Plant Science. अगर Plant Science में देखोगे, so these are the numbers which might really surprise you क्योंकि All India 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ऐसा सीरियल लगता है कि ऐसा चलता जाएगा. So this is what we have produced in the previous year. Almost there are like around 50+ students out of total 100. So who have qualified the JRF in the previous year, who have taken the coaching of Agri Addict Academy. So this is just of the 2025. If you see the legacy of Agri Addict toppers in the subject of Plant Sciences, we have consistently produced like highest or All India first rank in the 3 years, starting from 2023. So 2023 batch All India top ranker was our student, and 2024 batch All India top ranker or the first ranker was our student, and lastly the previous one in the 2025 All India first ranker was also our student. So this is what we have achieved in the previous years. And if you talk about the 2024 and 2023 in the previous years, even in the 2024, so we had a highest number of top rankers including the AIR1. And even if you talk about the 2023, in this also like we had a AIR1 with many students who have cracked this ICRPG exam in the subject of Plant Sciences with Agri Addict. Okay, so this is about the glimpse. I won't be going in detail because सबको तो already पता होगा कि हमने previous साल्स में क्या अचीव किया है, क्या क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं. So let's come to the point कि आज इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ. ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो या दोनों चीज़ों को बहुत परफेक्टली कर रहे हो. तो this video is for everyone. Okay,
So before I just deal into the subject directly, like let me give you the quick information about some of the very important details. तो start करेंगे एग्जाम मोड से. तो किसी को अगर पता नहीं हो तो दिस इज लाइक CBT मोड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ये OMR बेस्ड टेस्ट नहीं है. एंड इसमें लैंग्वेज क्या होगा, दिस इज ओनली इन द इंग्लिश. ये सिर्फ इंग्लिश में रहेगा. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देयर विल बी लाइक टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर. एंड ईच क्वेश्चन कैरीज लाइक 4 मार्क्स. सो यू विल बी राइटिंग दिस एग्जाम फॉर 480 मार्क्स इन टोटल. एंड जो CBT मोड का एग्जाम है, एंड इट विल बी डायरेक्ट, इट विल बी लाइक MCQs. डायरेक्ट MCQs तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें एसोसिएशन रीजनिंग भी आएगा. एंड इट विल बी आल्सो द स्टेटमेंट वाइज मैच द फॉलोइंग. एंड ड्यूरेशन जो रहेगा इसका कितना रहेगा, 120 मिनट्स, या आप इसको बोल भी सकते हो कितना, it is also like 2 hours. You will be given 2 hours of time to attend like 120 questions. Okay, and kind of questions that are asked. So here, so you can write it as like direct multiple choice, direct MCQs आ सकते हैं. Then there might be like assertion and reasoning type. There might be like statement wise questions, and there can be like match the following. And latest 2-3 साल से एक और ट्रेंड आ रहा है, which is arranging the sequence, arranging the events in the sequence. So ये भी recent years से questions बहुत सारे आ रहे. So this is the diversity of the questions that are asked in the exam. यही different types of questions है जो एग्जाम में पूछा जाता है ICAR PG एग्जाम में. ये सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है. एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लान साइंस हियर. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द पैटर्न फॉर द एग्जाम 2027. अगर आप सारे PYQs को अगर एक बार एनालाइज करके प्रिडिक्ट करना चाहोगे तो एग्जाम कैसा होने वाला है. देखो, लास्ट 3 to 4 ईयर्स में ना जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उसको इतना ज्यादा मॉडरेट कर दिया है. ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे चीजों को. जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लाइक जो क्वेश्चंस पूछते हैं हर एक सब्जेक्ट में वो प्रोपोर्शन मेंटेन करके रखा है. हालांकि लाइक प्लस और माइनस 10 होता है, बट इफ यू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, दे आर ऑलवेज फ्रॉम लास्ट, talking from 2020 to 2026, the exam that was done, you can assume that the questions level will be like moderate, not too high or not too difficult or not too much easy. You can say it is like moderate level paper. Since they are following the same pattern, तो next year exam के लिए भी आप expect कर सकते हो कि पेपर moderate ही आएगा. तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना. ठीक है. डिफिकल्ट अगर इनकेस आएगा भी तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना हम पढ़ाते हैं कोर्स में उससे सब कुछ तो कवर हो ही जाता है. ओके, सो व्हाटएवर वी जस्ट टीच इन द क्लासेस, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट कवर्ड ओनली. नेक्स्ट, कमिंग टू द सिलेबस. देखो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपेयर कर ही रहे हो ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये चीज मिस कर देते हैं कि सिलेबस को देखना. चलो कोई नहीं, अग्रेड पढ़ा रहा है तो उसके साथ पढ़ लेते हैं, सिलेबस को क्यों ही देखना. ऐसे गलती बिल्कुल मत करना. ठीक है. सो इवन इफ यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी और विद योर मास्टर कोर्स, checking the syllabus at least once or twice in every 1 or 2 months is very much essential. ये होना भी चाहिए, क्योंकि सिलेबस देखने से क्या होगा ना कि बार बार जब आप पढ़ते जाओगे ना, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स जब आप पढ़ोगे याद आएगा कि हाँ इस सिलेबस में मेंशन था, तो उस चीज को आप ज्यादा वेटेज देके पढ़ोगे और उसको ज्यादा याद भी कर पाओगे. दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट. ओके, सो व्हेनेवर यू सी सम थिंग्स एंड ट्राई टू रिमेंबर इट, एंड व्हेनेवर यू ट्राई टू रीड इट ऑन द बुक्स और विद द क्लासेस, यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस स्पेसिफिक टॉपिक्स. सो ओवरऑल इसको कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट यूनिट्स. इसको टोटली 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. एंड दिस यूनिट्स आर नॉट डिवाइडेड एज पर द सब्जेक्ट, क्योंकि प्लांट साइंस में अगर आपको पता ना हो, सी व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स और द डिपार्टमेंट्स वेयर यू कैन डू योर MSc अंडर प्लांट साइंस. अगर आप प्लांट साइंस से ऑप्ट कर रहे हो तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप MSc कर सकते हो. सी फर्स्ट वन इज जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सेकंड वन इज प्लांट पैथोलॉजी, थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी, and fourth one is seed science and technology. And along with that there is one more department which is like plant genetic resource, but remember this department is only present at IRI. ठीक है, सिर्फ IRI में ही एडमिशन मिलेगा, मतलब ये डिपार्टमेंट सिर्फ IRI में ही है. ठीक है. So this is about the total number of departments under plant science. तो इसका मतलब क्या हुआ, like what does it mean? Like if you have 5 different departments, that means like you have to study all these 5 different subjects for your ICAR PG exam. Okay, so overall together all the subjects are mixed in certain proportion in every unit. Okay, तो इसके साथ सर पोर्शन में इतनी ही आएगा और कुछ आएगा इसके साथ साथ, उसको भी मैं क्लियरली बता रहा हूँ. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द स्ट्रेटजी. नेक्स्ट, सो हु इज एलिजिबल. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. स्टूडेंट्स हमेशा घबरा जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड लेटर दे नो दैट दे आर नॉट एलिजिबल. उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है. सो बेटर बिफोर यू स्टार्ट यू क्लियरली नो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, वेदर you are eligible or not. So now who is eligible? The students who have completed the 4-year degree. अगर आपने 4 years का डिग्री खत्म किया है, कौन सा डिग्री, इट इज BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री. सो ऑनर्स भी हो सकता है या नॉर्मल BSc एग्रीकल्चर भी हो सकता है. अगर आपने इसको खत्म किया है एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, स्टिल
you can write this exam, and this is, don't get confused, this is I'm talking about the only plant science subject. ये मैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट साइंस सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ. आप प्लांट साइंस के वीडियो देख के किसी और को, मतलब कोई और सब्जेक्ट जो चूज करना चाहेगा उसको जाके मत बताना, ठीक है. हर एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. हालांकि लाइक मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स में कॉमन है, बट यू हैव टू रेफर दिस PDF और दिस डॉक्यूमेंट. इसका एक प्रॉपर ब्लॉग भी बना हुआ है ICAR PG एग्जाम के नाम से. आई विल बी ऑल्सो ड्रॉपिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपके फ्रेंड्स कोई भी अगर प्रिपेयर करना चाहेगा, लाइक इफ एनीवन इज वांटिंग टू प्रिपेयर फॉर ICAR PG एग्जाम्स एंड दे वांट द कंप्लीट डिटेल्स, जस्ट शेयर द ब्लॉग लिंक विद देम, ठीक है. सो इन कंटिन्यूएशन, सो दिस इज द 4 years degree you have to complete. Or see, first of all, if you are under this eligibility, so you are eligible, you have this all the required qualification, then you can take the admission in any of the deemed universities, and you can take the admission in any of the state agriculture universities, all under ICAR, or central agriculture universities and central university, wherever the agriculture facility is there and whichever is included in the ICAR counseling. ICAR counseling में जो भी आएगा, you can directly take the admission by writing this exam, cracking it and attending the ICAR counseling. Okay, next. और आपके पास अगर 4 साल का डिग्री नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स बॉटनी से होंगे, जो भी स्टूडेंट्स BSc 3 साल के किए होंगे ना, इवन दे आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम. प्लीज नोट इट डाउन. अगर कोई आपके फ्रेंड है, आपके नोन में है जो 3 साल के डिग्री किए हैं, जो MSc प्लांट साइंस में करना चाहते हो, जो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, इवन दे कैन डू इट. बट वन प्रॉब्लम इज दे आर ओनली एलिजिबल टू गेट द सीट एट IRI. वो सिर्फ IRI में ही कर सकते हैं. जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. सो दैट्स द एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन कि अगर आप 3 साल की डिग्री किए हो, तो देन दैट मीन्स लाइक यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल. वेयर व्हाई? बिकॉज IRI, you will only get the IRI if you get like top rank in this exam, तभी मिलेगा IRI, right? तो लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, since we are here, तो आप आराम से कर सकते हो. बट इतना होना चाहिए कि you have to do the consistent hard work in a smart way. ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ हम करेंगे और आप आराम से बैठे रहोगे तो आपके एग्जाम क्लियर होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. जिनका माइंडसेट है कि I have to crack this exam, I am ready to do all the hard work, all the work, smart work that is needed to crack this exam, then this exam is definitely for you. You will crack it. Okay, so this is about the eligibility and also about the accreditation. Students are very much afraid of this accreditation कि accreditation का क्या सीन है. तो मैं ये चीज बता दूं कि after 2021 और 2022 the accreditation rules have been completely removed from the ICAR. आज की डेट तक ऐसा कोई रूल नहीं है जो बोलता होगा कि नॉन accredited एग्रीकल्चर कॉलेजेस या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम को नहीं लिख सकता. ऐसा कोई रूल नहीं है अब के लिए, टिल डेट ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है. सो इफ यू आर फ्रॉम द नॉन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज और द कॉलेजेस, स्टिल यू हैव द एलिजिबल क्वालिफिकेशंस ऑफ 4 year BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी. यू कैन स्टिल राइट दिस एग्जाम एंड यू आर एलिजिबल टू टेक द सीट्स थ्रू द ICAR काउंसलिंग. ओके, इसको नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट आएगा सब्जेक्ट्स. तो आपको अगर प्लांट साइंस में प्रिपेयर कर रहे हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो भी कॉल करते हैं ना हमारे स्टूडेंट मैनेजर्स को या मेरे को, वो कंफ्यूज होकर कुछ भी बोल देते हैं. सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर जेनेटिक्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर प्लांट पैथोलॉजी. ऐसा नहीं है. लेकिन अगर आप MSc करना चाहते हो तो आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे? यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर ओवरऑल प्लांट साइंसेस. आप प्लांट साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. ओके, बट in that plant sciences, what are all the subjects that you have to prepare for? You have to prepare for GPB, genetics and plant breeding. You have to prepare for plant pathology, and you have to prepare for agriculture microbiology, and then it is seed science and technology. See, these 4 are considered to be like major subjects. जैसा वेटेज के हिसाब से, ओके, जो वेटेज हमने देखा है पिछले लास्ट 5 से 6 सालों में, बेस्ड ऑन द वेटेज, सो दिस आर कंसिडर्ड टू बी द मेजर सब्जेक्ट, जहाँ पे 120 क्वेश्चंस में ना मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, मान लो कि 80+ या 80 to 90 क्वेश्चंस यही से आएगा, इसी 4 सब्जेक्ट से ही आएगा. बट इसका मतलब दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने नहीं पड़ेंगे? नहीं, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा. सो व्हाट आर द अदर सब्जेक्ट्स? सी, अदर सब्जेक्ट्स आर प्लांट बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री पूरा बेसिक से पढ़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स, एसिड, बेस, pH, ये 3-4 चीजें पढ़ने होंगे. नेक्स्ट इट इज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा. नेक्स्ट यू हैव प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पता ही होगा लाइक व्हाट यू हैव टू रीड इन द प्लांट फिजियोलॉजी. लाइक व्हाट इज इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस आर द 2 प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. उसके अलावा कुछ चीजें वाटर रिलेशन का भी पता होना चाहिए. सो दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम, एंड दिस 3 आर टू बी कंसिडर्ड एज लाइक माइनर सब्जेक्ट. ये हम माइनर कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें भी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही है स्पेसिफिकली. ओके, दैट्स व्हाई वी कंसिडर दिस एज माइनर सब्जेक्ट्स. तो उसके अलावा सर इतना ही है क्या, हो गया? नहीं, और 2 चीजें हैं, ओनली 2 थिंग्स. व्हाट इज दैट? द अदर वन इज लाइक जनरल एग्रीकल्चर, एंड द लास्ट वन इज लाइक एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स.
सर आपने तो पूरा एग्रीकल्चर को ही इंक्लूड कर दिया इसमें, बट yes it is included, but according to the weightage of questions, general agriculture questions will be around like 8 to 10 every year on an average basis, 8 to 10 questions. Current affairs questions will be maximum 2 to 3 in every year. Okay, 2 to 3 questions ही रहेंगे, ये इतना इसका वेटेज है. तो जितने भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, so what you have to focus, you have to first focus on the major subjects where you have done your revision for at least 4 to 5 times properly. एंड नेक्स्ट उसके बाद माइनर सब्जेक्ट में फोकस करना होगा जहां पे आपने एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स उसको अच्छे से पढ़े होंगे. नेक्स्ट दिस पार्ट इट इज लाइक 1 or twice, 1 or 2 टाइम्स इज मोर देन एनफ, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम मिलेगा भी नहीं. अगर मैं बोलूंगा कि आप 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. इतना वास्ट होता है कि आप इतना अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे. तो बेस्ट स्ट्रेटजी वुड बी कंसिडरिंग द मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट, having at least like 80 to 90% confidence in that, then going for the minor subjects and then jumping into the last part which is general agriculture and agriculture current affairs. तो इसमें भी सर अगर पूछोगे सर जनरल एग्रीकल्चर में ऐसा कोई सब्जेक्ट्स बताओ जहां से क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चंस आ सकता है. देखो पहले तो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सॉइल साइंस है दूसरा मेजर सब्जेक्ट जहां से क्वेश्चंस हर बार आएंगे. नेक्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चंस या एक्सटेंशन से 1-2 क्वेश्चंस जहाँ पे इट माइट बी लाइक ऑल्सो ओवरलैपिंग विद एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में अगर स्कीम्स पूछेंगे दैट कम्स इन बोथ एक्सटेंशन एंड ऑल्सो इन द एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग इज लाइक एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, लाइक यू कैन कंसिडर देम टू बी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द जनरल एग्रीकल्चर, प्लस यू कैन ऑल्सो ऐड द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स. इसका मतलब सर इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा क्या? पढ़ना तो पड़ेगा भाई, सब कुछ. अगर रैंक चाहिए तो सब कुछ पढ़ना होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंस दोगे, कितना ऊपर से पढ़ोगे, लाइक हाउ मच इन डेप्थ यू आर रीडिंग इट, दैट मेक्स द डिफरेंस इन द स्ट्रेटजी बिटवीन द स्टूडेंट्स. तो आपको सब कुछ मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दिस फोर सब्जेक्ट्स प्लस मेजर थिंग्स फ्रॉम दिस 3 सब्जेक्ट्स एंड मिनिमल थिंग्स फ्रॉम दिस 2 पार्ट्स is sufficient to crack this exams with the top rank. Okay, तो अगर आप जनरल एग्रीकल्चर भी कवर करना चाहते हो तो you have to prioritize these subjects and then after completing this if you have a time then go for the other subjects, or otherwise like you can simply follow our CUT PG marathon. जैसा कि marathon series हम हर साल कनेक्ट कराते हैं in the month of March where the CUT PG exam will be connected. Even if you watch the marathon series in the last moment in the month of March, most of the general agriculture will be covered. वहां तक आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. So that's how you can do it. Okay, so that's how it will be easy for you. So I have discussed in detail about the subject wise strategy. Now I will give you a quick overview about the number of questions that are asked in the different subjects. देखो अगर आप क्लियरली देखोगे हमने यहाँ से 2020 से लेकर 2026 तक का भी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था जिसका अभी तक पेपर भी नहीं मिला है, तो वहां तक भी हमने एनालिसिस करके आपको दिखा रहे हैं. लाइक वी आर गिविंग यू द एनालिसिस ऑफ 2020 to 2026. तो यहाँ पे आप एक चीज कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आया है. सो इट इज फ्रॉम जेनेटिक्स एंड प्लांट पैथोलॉजी. सो सिंस यू अंडरस्टैंड दिस लाइक मेजर वेटेज इज फॉर द जेनेटिक्स एंड प्लांट पैथोलॉजी. ओवरऑल 10 महीने में आप लाइक यू आर गिविंग लाइक 10 months ऑफ टाइम फॉर दिस एग्जाम, तो उसमें मैक्सिमम टाइम किस में जाएगा? 50% ऑफ द टाइम किस में जाना चाहिए? इसमें 50% ऑफ द टाइम इन दोनों सब्जेक्ट में ही जाना चाहिए. Along with the revision I am saying, not for one time reading, the complete revision. Okay, it might be like in first 2 to 3 months you complete these 2 subjects and then in the last 2 months you again revise it, or in between you take the 1 month for revision and in the last 1 month you can take for revision. So that's how you can take like complete 5 months for this 2 major subjects in this plant sciences. See, पूरा थरो होना चाहिए जेनेटिक्स में एंड प्लांट पैथोलॉजी में, जो एक कंफ्यूजिंग चैप्टर है या कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है. बट of course like with our classes most of the things will not be very confusing. बहुत सारी चीजें ऐसे होंगे बहुत क्लियर भी होंगे, ऐसे होंगे बहुत इजी भी होंगे याद करने के लिए, राइट. बट ओवरऑल अगर जनरली बात करें जाए तो दिस सब्जेक्ट इज समवॉट कंफ्यूजिंग क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिसोर्सेस नहीं है. उसका भी हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, सो आई विल टेल यू इन द अपकमिंग स्लाइड. सो बट वेटेज के हिसाब से लाइक यू हैव टू मेक श्योर लाइक जेनेटिक्स एंड प्लांट पैथोलॉजी को स्टार्टिंग डेज में ही आप कवर करो ताकि लास्ट में आते आते ना दिमाग नहीं चलेगा, राइट. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन जेनेटिक्स आर कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्ट आपका बेस अच्छे से बिल्ड होगा तभी आपको प्लान बिल्डिंग समझ में आएगा, राइट. सो ओके, आफ्टर दैट विच आर द अदर सब्जेक्ट विच आर इंपॉर्टेंट. सो ये क्राइटेरिया दे दूं 1, 2, then 3 and 4 and last 5. Okay, so these are the weightage priority. तो इसके तरफ in this way only you have to prepare for the exam. आप इसी तरह प्रिपेयर करो एग्जाम को. ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे कि सर कैन आई गो फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट इन अ डे, शुड आई गो फॉर इट और नॉट. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनिशियल डेज में पूरा जान एक सब्जेक्ट में देते जाओ
कि एक फिक्स टारगेट रखना कि हर दिन कितना पेजेस आप कवर करोगे, कितना चैप्टर्स आप खत्म करोगे। हर एक दिन में तो मोर देन 1 चैप्टर आप खत्म नहीं कर पाओगे बिल्कुल, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। इफ यू हैव सम गुड रेसिडुअल नॉलेज, कॉन्सेप्ट का होल्ड है, तो यस यू कैन डू इट इन अ सिंगल डे। बट अदरवाइज नॉर्मली जैसे कि मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट होंगे, वो तो 4-5 दिन मिनिमम लेंगे एक एक चैप्टर को खत्म करने में, और कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जेनेटिक्स में वो 10 से 15 दिन भी ले सकता है। बट अगर आप मेरे क्लासेस से पढ़ोगे, so then no doubt within like single day or 2 days in the maximum you will be able to understand each and everything, आप समझ भी पाओगे 100%। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेजर सब्जेक्ट। उसके बाद जैसा मैंने बताया एग्रोनॉमी से भी क्वेश्चन आया है, हॉर्टिकल्चर से भी आया है, एक्सटेंशन से भी आया है। हर एक सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है उसको मैंने हमने दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कुछ साल में क्वेश्चंस आए हैं, कुछ कुछ साल में कुछ क्वेश्चंस नहीं आया है अलग अलग सब्जेक्ट में। बट प्लांट फिजियोलॉजी का देखोगे तो यू सी द क्वेश्चंस इन मोस्ट ऑफ द ईयर्स। ओके, नेक्स्ट इफ यू सी द करंट अफेयर्स का भी देखो वेटेज, कुछ कुछ में पूछा है, कुछ में नहीं पूछा है। बट इफ यू टेक द बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी इट वाज आस्क्ड इन 2023 शिफ्ट 2। बट इसका मतलब नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। कि क्या हुआ है यहाँ पे, I'll tell you. See, biochemistry and biotechnology, it will be more or less overlapping with the genetics and the microbiology. And कुछ parts तो plant pathology से भी overlap करता है, कुछ parts plant breeding से भी overlap करता है। So that is why the count यहाँ पे नहीं किया गया है, right? But yes, from the exam point of view, वहाँ पे clear cut separation नहीं है कि आप genetics का student हो तो much of the biotechnology content you will be getting it already, right? So that's why this is also very much important for your ICAR PG exams in the subject of plant sciences. Okay, and PGR में भी जो plant genetic resource है, economic botany से बहुत सारे questions नहीं आते हैं। तो कुछ specific years में कुछ questions पूछा गया था, but these are not exclusive. ये जो questions पूछा गया था, they were already taught in the genetics and plant breeding only. Plant breeding और genetics में already पढ़ाया गया था, and it is already there in the portion of genetics and plant breeding. Okay. सर आपने सिलेबस बता दिया, सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दिया, पीवाईक्यू एनालिसिस करा दिया, तो व्हाट नेक्स्ट? सो नेक्स्ट इज टू नो अबाउट लाइक सर बुक्स कौन सा खरीदना चाहिए हमें। सो इन विच बुक्स वी हैव टू इन्वेस्ट आवर मनी, क्योंकि देखो हर एक बुक मिनिमम 600 से 700 में आएगा। लाइक यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट लाइक 600 to 700 फॉर अ सिंगल बुक। सो यू हैव टू डू इट वाइजली। ऐसा नहीं कि आप 2-3 हज़ार बुक्स में खर्च कर दिए और बाद में उसको पढ़ ही नहीं रहे हो और उसके समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा बिल्कुल, ये गलती बिल्कुल मत करना। या जब बुक्स के बात आ जाती है ना, तो कंफ्यूजन हमेशा एक चीज में रहेगा, वेदर आई हैव टू गो विद द बीडी सिंह और द कुंदन सिंह। मुझे बीडी सिंह से जाना होगा या कुंदन सिंह से जाना बेटर रहेगा। तो अगर मुझे पूछोगे, लाइक इफ यू आस्क मी बेस्ड ऑन माय एक्सपर्टीज, आई वुड डेफिनेटली से टू गो फॉर द जेनेटिक्स बाय बीडी सिंह। जेनेटिक्स बाय बीडी सिंह ही खरीदो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सब कुछ है, एवरीथिंग दैट इज नीडेड एंड समथिंग विच इज नॉट नीडेड वो भी है, बट जो चाहिए वो तो पूरा है, वो तो कुछ भी नहीं मिस होगा इससे। ये एक बुक पढ़ लोगे तो सारा हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बुक कभी नहीं पढ़ पाओगे आप। पढ़ तो पाओगे लेकिन कभी 100% समझ नहीं पाओगे अगर कोई आपको गाइड नहीं कर रहा है, कोई आपको समझा रहा है। बिकॉज इट नीड्स एटलीस्ट 10 to 12, 15 to 20 रीडिंग्स एंड इट नीड्स सम एक्सपर्टीज कि एक साल में इसको करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग सो दैट यू हैव टू बाय द कोचिंग, बट आप अगर सीनियर्स को भी पूछोगे तो वो भी सेम बोलेंगे कि इसका जो लैंग्वेज है, इसका जो कॉन्सेप्चुअल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये थोड़ा गड़बड़ है। तो स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज फेस करेंगे अगर उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो। एंड मोस्टली लाइक जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे वो जीरो से ही स्टार्ट करेंगे ना। लाइक यू पीपल यू नो इट, लाइक वेदर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और कुछ स्पेसिफिक रेसिडुअल नॉलेज आपके पास है। सो वट एवर इट माइट बी, लाइक इफ यू want to start it from here, you have to start it from BD Singh only, but still you have to know that पढ़ोगे तो सही लेकिन पूरा तो समझ में नहीं आएगा। ये पहले जान के ही स्टार्ट करना, ठीक है? ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बाद में you will be demoralized. Okay, so don't do that. I'll also tell you the alternate solution for that, but let's start with the standard books. ये स्टैंडर्ड है, एक बाइबल जैसा हम मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो आएंगे ना इस बुक से डायरेक्टली आ जाएंगे। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट लाइक प्लांट ब्रीडिंग के लिए मैं सजेशन दूंगा या ऑप्शन दूंगा कि you can either go for Kundan Singh or you can also read the BD Singh. कुछ भी दोनों में से कोई भी बुक आप खरीद सकते हो। But again, if you are going for the plant breeding for BD Singh, it is like complete. ये complete है, अपने आप में complete है, कुछ भी इसमें missing नहीं है। Okay? And if you go for Kundan Singh, it has been simplified, तो कुछ topics आपको miss होंगे, but ये भी याद रखना, like also remember this plant breeding book is not only for ICAR PG, it is also for ICAR PhD. ये एक्चुअल में क्या है, इसमें हर एक लाइन स्टूडेंट्स जो पीएचडी एग्जाम लिखते हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जो इसमें एटलीस्ट आपको 60% ऑफ द कंटेंट को ना नेग्लेक्ट करना होगा।
आपको ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 60% ऑफ द कंटेंट आपके लिए बने ही नहीं है ये सर। अगर 40% के लिए हमें इतना इस बुक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो चीज़ आप सोचो। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्लान बिल्डिंग बुक आपको लेना चाहिए। तो आप अगर बजट का कंस्ट्रेंट है तो आप एक चीज कर सकते हो, लेकिन डू वन थिंग, यू कैन गो टू द लाइब्रेरीज एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर। बट सर हमारे पास कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है, हम बुक्स खरीदना चाहते हैं, तो देन यू कैन डू इट, एंड बुक्स आर ऑलवेज द बेस्ट फ्रेंड्स। अगर बुक में आप इन्वेस्ट करोगे, इफ यू रीड इट देन इट विल बी ऑलवेज फ्रूटफुल। तो ऐसा नहीं कि बुक खरीद के ज्यादा सोचना पड़ेगा कि खरीदना है नहीं खरीदना, डिपेंड्स ऑन योर बजट, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, सो कुंदन सिंह, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो उसमें भी आप जा सकते हो, तो उसमें भी पढ़ सकते हो। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज प्लान बिल्डिंग में ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। इन विच एवर बुक यू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट, उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट कुछ पता नहीं है, यू आर ट्राइंग टू मग अप, पैटर्न हर 2 साल में 1 साल में चेंज होता रहेगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक ऑल द क्वेश्चंस, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स। वहां पे एक दिक्कत आएगी, तो बेटर नोट इट। एंड ऑल्सो सेम गोज टू द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी ऐसा नहीं है कि 100% इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइक 15 to 20% इसमें भी ऐसा कंटेंट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। एंड आई हैव क्लियरली नोटेड दिस ऑल इन माई PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। इसका मैं बताऊंगा कि PDF कहाँ से मिलेगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस दैट इन द एंड में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो पढ़ना है जो नहीं पढ़ना है उसके बारे में भी मैंने बताया है, तो उसको भी बताऊंगा कि कहाँ से वो चीज आपको मिलेगा, लाइक फ्रॉम वेयर यू विल बी गेटिंग टू नो अबाउट इट। नेक्स्ट, सो थर्ड वन, सी ये हो गया लाइक जेनेटिक्स का और प्लांट ब्रीडिंग का। सो द लास्ट मेजर सब्जेक्ट इज लाइक प्लांट पैथोलॉजी। सी फॉर प्लांट पैथोलॉजी आई वुड रेकमेंड, इसका प्राइस जो है ये 300 तक ही आएगा। So it is like 300 to 375, I guess. So here this book is like from H.C. Dubey, like the textbook of fungi, bacteria and virus. ये एक बेसिक बुक है जो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर आप मल्टीपल रीडिंग्स करते हो बुक को, एंड देन यू विल मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेसिक्स। तो दिस आर लाइक 3 बुक्स विच आर लाइक आई से आर वर्थ टू टेक इफ यू आर प्लानिंग टू डू योर MSc। अगर MSc करना चाहते हो प्लांट साइंस से, तो दिस 3 बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, ओके। सो नेक्स्ट, सर इतना मोटे मोटे बुक्स को पढ़ने में, उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो हम तो आपके कोर्स से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? सी इफ यू आर very much satisfied with the classes and you want to keep a standard source, then buy those 3 books. In addition to those 3 books, don't buy any book for any other things. Like plant pathology में सिर्फ मैं introduction to pathogens दिखाया था, like I only showed you about the one book for the introduction to pathogens. What about sir diseases part? What about the epidemiology? What about the genetics of plant pathology? For all this there are multiple sources. एक सोर्स ऐसा डेफिनेटली नहीं मिलेगा जिसमें आपको सारे कंटेंट मिल जाए। So to solve it, we have come up with some solution. I'll tell you about it. Let's start with the genetics. Genetics, BD सिंह को आप एक रेफरेंस बुक की तरह रख सकते हो। बाकी आप स्ट्रिक्टली मेरे जो हैंड बुक है उसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो अलॉन्ग विद द क्लासेस। जैसे जैसे क्लास खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे आप इस चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे, लेकिन नो डाउट इट विल बी लाइक सुपर डुपर इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आपको रियलाइज भी होगा कि जेनेटिक्स इतना ईजी है क्या। सो आई कैन बेट ऑन इट। मोस्ट ऑफ योर सीनियर्स, अगर आप सीनियर्स के कांटेक्ट में हो तो पूछ सकते हो, जिन्होंने MSc किया होगा या MSc करने के लिए प्लांट साइंस में प्रिपेयर किया होगा इन द प्रीवियस ईयर्स, एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, so they will tell you more about it, okay? So I would strictly or directly recommend you, so go for this handbook without fail, okay? And this handbook is only available for 500, ये 500 में available है, कभी कभी 400 तक भी आ जाता है, कभी कभी 450 तक भी आ जाता है। So this is a very good book, you can definitely go for it. Next important book is plant pathology. See, main problem plant pathology का ये था कि there is no single book, just like for genetics and plant breeding एक single book है, उसमें सब कुछ है। ऐसा प्लांट पैथोलॉजी के लिए है ही नहीं बुक जिसमें सब कुछ उसी में है। जैसे कि उसमें पैथोजेंस के बारे में भी दिया गया है, इसमें डिसीजेस के बारे में भी है। सो देयर इज आल्सो मैनेजमेंट एंड देयर इज आल्सो द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ऑल द डिसीजेस ऑफ ऑल द क्रॉप्स, प्लस देयर इज एवरीथिंग अबाउट द जेनेटिक्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। सब कुछ कवर किया हुआ ऐसा कंटेंट या ऐसा बुक कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरा मार्केट में, ओके। सो देयर आर मल्टीपल बुक्स एंड अगेन सब बुक्स का वॉल्यूम इतना ज्यादा ही होगा। And you might get like one-liners से क्या ही होगा, like one-liners are just to only remember, उससे आपको कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझ में आएगा। So that is why the best solution is going for the handbook of plant pathology. इसको हमने बहुत ज़्यादा ही meticulously डिज़ाइन करके, बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स से रेफरेंस उठा के बहुत अच्छे से लाइक चीज़ों को कंपाइल किया है। लाइक दिस इज
वेरी मच यूजर फ्रेंडली, रीडर फ्रेंडली। लाइक इसको आप पढ़ोगे, सो प्लांट पैथोलॉजी विल सीम, आई वुड से लाइक नॉट ईजी तो तब फील होगा जब आप बार बार रिवीजन करोगे। इट विल बी लाइक वेरी स्मूथ, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आप पढ़ सकते हो। बाकी ईजी तब फील होगा अगर आप प्रॉपरली मन लगा के 2-3 बार पढ़ोगे, राइट? सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज and also it feels like super clear once you read it. So I would recommend, and this book will be also available somewhere around 600 to 700 क्योंकि ये जो बुक है ये complete book रहेगा प्लांट पैथोलॉजी के लिए। So this book will be having a pages of around like 500 pages का होगा ये, okay टोटल। बट इसका मतलब नहीं है सर बहुत भर भर के आपने कंटेंट डाला होगा। जो नेसेसरी है, जो चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पे इंक्लूडेड है। एंड बट डोंट वरी, सारे टेक्स्ट नहीं है इसमें, बहुत सारे फिगर्स है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ फिगर्स इन दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ पेजेस आर लाइक 500। अदरवाइज लाइक कंटेंट के बारे में बताऊं सो इट इज अराउंड ओनली 250 पेजेस। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का बारे में बताऊं लाइक इट इज ओनली 250 पेजेस। बट सिंस लाइक देयर आर लॉट ऑफ डायग्राम्स इन द प्लांट पैथोलॉजी, it has gone up to like 500. इसको cuts out करके like we are planning to make it like 420 430 तक, but let's see. And this book is will be available by the month of अगस्त के मंथ में अवेलेबल हो जाएगा in the August 2026, ठीक है? And genetics book, if you want to ask me about the number of pages, it will be around like 370 pages, that's it. And in the second edition, this is the first edition which is already available for sale. So in the second edition, so we are going to reduce it, बट कंटेंट वही रहेगा, ओके? मच इम्प्रोवाइज कंटेंट तो मिल जाएगा, बट ओनली आफ्टर द सेल ऑफ दिस फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट एडिशन के बुक्स अभी भी बचे हुए हैं, तो वंस इट इज डन, स्टॉक्स ज्यादा भी नहीं है स्टूडेंट्स। लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू टेक इट, फर्स्ट एडिशन से सेकंड एडिशन आने में एटलीस्ट 1 महीना तो मिनिमम लगेगा। अगर इतना वेट नहीं कर सकते हो तो ऑर्डर इट राइट नाउ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यू विल गेट एवरीथिंग। नेक्स्ट, द थर्ड सब्जेक्ट इज विच वन? इट इज I'll talk about the plant breeding later, okay? So next book is like seed science. Seed science भी ऐसा बुक है जो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई बुक को लो। I won't recommend you to take any of the standard books for the seed science. Seed science में क्वेश्चन भी कितने आएंगे? Like total number of questions are 10 to 12. या मान लो कि 10 to 15 questions ही आएंगे on an average. So for attending the 10 to 15 questions, you need not to read any of the standard books. For you, for your exam, the standard book is like a handbook of agri-edit seed science and technology. यही काफी है। इसमें मैंने खुद लिखा है इस बुक को भी, और मैंने इसको बहुत अच्छे से कंपाइल किया है बेस्ड ऑन माय एक्सपर्टीज, माय एक्सपीरियंस विद लाइक एमएससी एंड द पीएचडी, सिंस आई एम डूइंग माय पीएचडी इन सीड्स एंड टेक्नोलॉजी। नो डाउट अगर एक बार पढ़ोगे तो बहुत मन लगेगा, लाइक यू लव इट, आई कैन अश्योर यू फॉर दैट, ओके? एंड ये भी अवेलेबल कितना में रहेगा? लाइक दिस इज अवेलेबल एट 399, दैट इज अराउंड 400, so you can also go for it. Next book is like very simple book. See, students used to suggest, like we also used to suggest like Taro and Kapoor previously, but now it is outdated. You do not find like much of the content relevant in Taro and Kapoor whenever you try to read the microbiology. Again, you have to go for like standard books which the students of MSc for the PhD entrance exam they refer. ऐसे बुक्स के लिए जाना पड़ेगा अगर आपको इन डेप्थ अच्छे से माइक्रोबायोलॉजी समझ में आना होगा तो। इससे अच्छा है कि आप सिंपल जो 10 से 15 क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे, इसके लिए एक सिंपल बुक है, दिस इज अवेलेबल एट ओनली 299। इसको आप लेके प्रॉपरली खत्म कर सकते हो। दिस इज ओनली अराउंड लाइक 200 पेजेस ही होंगे, 200 या 200 भी नहीं, लाइक 130 to 150 पेजेस ही है इसमें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। ज़्यादा भी कंटेंट नहीं है और कम भी कंटेंट नहीं है, ऑप्टिमम कंटेंट है जो एग्जाम के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ओके? द लास्ट वन इज लाइक प्लांट ब्रीडिंग विच इज एट टू कम। इसको भी हम बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। So this will be anywhere available by the month of October. अक्टूबर जब हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, it will be available by the month of October. So students who are planning to take the standard books, you can wait till the October for the plant breeding if you are not interested to take the Punnan Singh or the BD Singh, क्योंकि उनका बुक्स जो आएगा like 700 से 800 में ही आएगा, right? So if you are not wanting to go for it, they are already available in your libraries, then you can directly go for these books. Overall अगर आप calculate भी करोगे कितना पड़ रहा है आपको, see 500, you'll get it for 300, 800, and you'll get it for 400, 1200, and you will get this for around like let's say like 500. That is 1700 plus 700 or 600. Let's say 700. So you will be getting all of these books at 2400 in total. Okay. So हालांकि लाइक सारे बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे पास कौन कौन से बुक्स अवेलेबल है? वी हैव लाइक जेनेटिक्स, वी हैव सीड साइंस, वी हैव माइक्रोबायोलॉजी, एंड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ अगस्त लाइक दिस विल बी रिलीज। सो यू कैन purchase these 3 books all together right now and purchase these 2 books later, okay? अगर आप साथ में परचेस करने जाओगे तो उसमें भी कुछ ऑफर्स है, कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे,
that will definitely save some of your money. Okay, so this is about a standard books that you can go for. Next, जनरल एग्रीकल्चर. सी जनरल एग्रीकल्चर में अगर सब्जेक्ट्स का लिस्ट करूं जो हमारे मेन सब्जेक्ट में नहीं था, वो यही था जो मैंने पिछले भी लिखा था, लाइक आई ऑल्सो रोट इट प्रीवियसली. तो उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, एग्रोनॉमी इंपॉर्टेंट है, एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एंड बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस, एंड ऑल्सो यू कैन रीड द स्टैट्स. सो दिस आर ऑल द वन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. यही है इंपॉर्टेंट. इसको पहले प्रियोरिटाइज करोगे जब आप जनरल एग्रीकल्चर को पढ़ोगे. उसके बाद इफ यू गेट द टाइम देन यू विल गो फॉर द अदर सब्जेक्ट्स. ऑल्दो लाइक मोस्टली जितना भी सब्जेक्ट्स है 11 में से लाइक 6 and 7 आई ऑलरेडी मेंशन्ड. सो यस, लाइक रैंडमली एवरी ईयर द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस. देखो, आप अगर ऑल इंडिया 1 चाहते हो, ऑल इंडिया 10 में चाहते हो, ऑल इंडिया 100 में चाहते हो, तो देन यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स. आपको करना ही होगा. अगर आप नहीं सर मुझे सिर्फ एमएससी सीट चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, तो ये सब तो आप छोड़ भी सकते हो. बट आई वुड डोंट से, लाइक आई ऑलरेडी सेड कि आप एमएससी करना चाहोगे, लाइक इफ यू वांट टू डू द एमएससी देन ओनली प्लान टू डू इट विद आईसीआर पीजी फेलोशिप के साथ ही प्लान करना, सो दैट यू गेट द रेप्यूटेड वेरी गुड कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटीज फॉर योर एमएससी. ठीक है, क्योंकि इसलिए 10 महीने का मेहनत करके आप जेआरएफ नहीं ले रहे हो तो क्या ही फायदा होगा उसका, राइट? सो इफ यू डू इट इन द राइट वे, नो देयर इज नो सच कॉम्पिटिशन दैट यू विल बी लैगिंग बिहाइंड. यू विल डेफिनेटली डू इट. ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस तो आपको होना चाहिए. ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बता रहा हूँ. जितने लोगों ने पूछो ना, तुम्हारे सीनियर्स होंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, पूछो जितने लोगों ने लाइक 6 मंथ से 8 मंथ से मिनिमम लाइक एफर्ट्स डाले होंगे, सबका हुआ होगा अनलेस एंड अनटिल दे आर गिवन देयर 100%. सो गेट रेडी टू गिव योर 100%. लास्ट, करंट अफेयर्स का कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट? एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे चीजें होंगे, जैसे कि अवार्ड्स होगा, स्कीम्स होगा, लेटेस्ट रिलीज वैराइटीज होगा, जीआई टैग्स होगा, तो बहुत सारी चीजें होंगे जो आपसे पूछ सकते हैं. प्रोडक्शन डेटा होगा, राइट, फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स. सो ऑल ऑफ दिस, लाइक हाउ यू विल रीड इट, कहाँ से पढ़ोगे इस चीज को? सो फॉर सिंप्लीफाइंग इट, व्हाट वी डू, लाइक वी come up with the agriculture current affairs PDFs that will be available for everyone who have enrolled to our course. So this will be a PDF. ये PDF रहेगा ऐसे, जिसमें लाइक 15 to 20 पेजेस में सब कुछ कंपाइल करके, सब कुछ इंक्लूड करके हम एक बार में दे देते हैं लास्ट 1 month बिफोर, सो दैट दे कैन रिगरसली रिवाइज एंड दे कैन कवर दिस करंट अफेयर्स. इस बार भी लाइक आईसीआर पीएचडी में 2-3 क्वेश्चंस आए थे एंड आईसीआर पीजी में एक क्वेश्चन आया था, तो मोर और लेस लाइक मैंने बताया था कि स्कीम से रिलेटेड ही आएगा, तो स्कीम से रिलेटेड ही आया था. ओके, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, सर इफ यू वांट दिस एंटायर पीडीएफ जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल रहा है कि आपको कैसे कवर करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो, और हर एक टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस एग्जाम का सारा डिटेल्स, डॉक्यूमेंट जो चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. एग्जाम डिटेल्स आपको पूरा चाहिए, देन डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, इफ यू वांट टू नो द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इट, एंड प्लान साइंस का सिलेबस आपको अच्छे से देखना होगा, एंड सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ फेलोशिप सीट्स के बारे में, जैसे कि इसके बारे में बताया ही नहीं था मैंने. सी फेलोशिप सीट्स जितने होंगे आपके हर एक सब्जेक्ट का, लाइक इफ यू वांट टू नो अबाउट इट. नेक्स्ट, पीवाईक्यू से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करके उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए होगा, एंड कंप्लीट बुक लिस्ट, जैसा मैंने बुक लिस्ट 2-3 के बारे में बताया था. अगर इफ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट, लाइक कंप्लीट द बुक लिस्ट. एंड नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ द फ्री कंटेंट. अगर जो भी देखो, एग्रीएडिट सिर्फ मास्टर कोर्स ही नहीं चलाता है, एग्रीएडिट के पास बहुत सारे ऐसे फ्री कंटेंट है जो हर एक स्टूडेंट को हेल्प करता है, जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, राइट? सो इफ यू वांट द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस फ्री कंटेंट, एंड इफ यू वांट द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसा मैंने बताया था हर एक सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अगर उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स चाहिए, so all of this will be available for each and every student irrespective of whether you have taken the course or not. अगर कोर्स लिए होंगे या लेने वाले हो या नहीं लिए होंगे, सबके लिए अवेलेबल कराएंगे. whoever is watching this video, उसके लिए क्या करना होगा? so this is the PDF ICRPG 2027 एग्रीएडिट 10 months रिवीजन प्लान. so ये जो PDF है ये आपके डायरेक्ट मोबाइल में आ जाएगा. सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसको क्या करना होगा, यू हैव टू ओनली फिल द गूगल फॉर्म लिंक. आपको एक गूगल फॉर्म लिंक फिल करना होगा, लिंक से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहेगा. सो गो एंड फिल इट एंड गेट दिस पीडीएफ, एंड दिस इज कंप्लीटली फॉर फ्री. तो गूगल फॉर्म लिंक में मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, लेकिन इफ यू लाइक द कंटेंट, देयर आर फीडबैक सेक्शन. गूगल फॉर्म में एक फीडबैक सेक्शन होगा, तो उस जगह पे फीडबैक अपलोड कर देना एंड सबमिट इट. एज सुन एज यू सबमिट थ्रू दिस व्हाट्सएप नंबर, यू विल बी गेटिंग द लिंक फॉर द ड्राइव लिंक फॉर दिस पीडीएफ. वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट प्लान एंड द पीडीएफ.
So next, talking about the master course, I know like much of you are curious to know about the master course already. बहुत सारे students को पता भी होगा. But if you are new to this and if you want to know the complete details, let me give you the complete details. See, we have launched like ICAR PG 2027 batch and we have also launched the ICAR PG 2028 batch. This is called as target batch and this is called as foundation batch. And the validity of this target batch will be up to the day of 2027 exam and this will be valid till up to the day of 2028 exam. And if you talk about the course price, the core price is actually 599, but with 100% 1000 rupees discount, now it is only available for 4999. लास्ट ईयर का कोर्स इससे भी ज्यादा थोड़ा महंगा था क्योंकि उस टाइम पे हम स्टार्ट ही कर रहे थे. वी couldn't scale up, but this time based on number of audience that we got, number of students we got enrolled into the course, the flexibility we got, the support and love from the students, we were able to reduce the price of the course and this course is now available for 4999. and पता है इसमें एक बहुत ही अच्छा खासियत है and this is specially for plans and students. क्या है वो? See, this course is available in both Hindi and English. Language का एक मेजर दिक्कत होता है स्टूडेंट्स के लिए. ये इंग्लिश में होगा सर या हिंदी में होगा. कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमें बायलैंग्वेज में चाहिए, विच इज लाइक हिंदी को ना बायलैंग्वेज कंसिडर करो. हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी नहीं होता, इट इज लाइक बायलैंग्वेज. स्टूडेंट्स नीड इट इन द बायलैंग्वेज, सम कैटेगरी, सम स्टूडेंट्स नीड इट इन कंप्लीटली इंग्लिश. ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन द रीजन. सो व्हाट डज इट मीन? We are providing both English classes separately, bilingual classes separately in the single course in the single amount. इसी amount में हम दोनों courses को available करा रहे हैं and this is the exclusive feature that is only available for the plan science students. आप lucky हो इस चीज के लिए. And if you are preparing for 2028, you can enroll it right now if you are in the third year. So इससे benefit ये होगा कि आप 2027 का पूरा कोर्स आपके लिए एक्सेस रहेगा, तो जहाँ से हमारे साथ स्टार्ट भी कर सकते हो और एंड भी कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट 2028 का जो स्टार्ट होगा वहाँ वो भी आपको मिल जाएगा. सो यू विल हैव लाइक 2 years ऑफ कंटेंट विद अग्रेडेड जस्ट बाय एनरोलिंग इट फॉर 8999. ठीक है. इसमें भी अगर इससे भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, लाइक इफ यू नीड लाइक एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन दिस, you have to wait till the end. I'll share something very special for all the students. ठीक है. Okay. So who are the mentors? Mentors के बारे में तो बताना बहुत important है ना, कि कौन पढ़ाता है भाई इसमें कोर्स में. So who are the one who are like teaching you people? उन्होंने खुद क्रैक किया है नहीं ICAR PG, तो वो भी तो important है. So I will teach the genetics and seed science mainly. Then I have cracked this exam with All India 48 and second rank. And then we have like other mentors. Like you might be knowing all of these mentors since like they have already taught you in the YouTube. अगर किसी को भी नहीं जानते हो तो directly YouTube में जाके सर्च करोगे हमारा Plan Science playlist. इसमें सबका क्लासेस आपको मिल जाएगा. So you can see there are all the top rankers and most of the mentors are from IRA New Delhi. They are pursuing their MSc or the PhD. So or they have already completed their MSc or PhD from IRA. So you will no doubt get the best to best quality content, and not just the best quality content, but the content which gets the excitement in you and makes you feel very happy and confident about the subject of agriculture. So talking about the classes, next doubt यही होगा सर क्लासेस कोर्सेस तो ठीक है, लेकिन आप कितना क्लासेस करवाते हो इसमें, कब से कब स्टार्ट होगा, कब से एंड होगा, सिलेबस कब खत्म होगा. लाइक yes, I'll get you complete information about it. See, if you talk about the previous year number of classes, like what we have taken, like we have taken like 60 to 65 classes for genetics. बस 60 to 65 क्लासेस में हर एक टॉपिक मैं क्लैरिफाई करा दूंगा और हर एक टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगी. I only need 60 to 65 classes of yours. And what will be the duration? Duration will be like 1.5 hours to 2 hours maximum. इतना ही रहेगा. ठीक है. इससे ज्यादा हम क्लास लेके एग्जॉस्ट नहीं कराते. आपका इंटरेस्ट कीप अप करते हैं हर एक क्लास में और बहुत अच्छे से इसको सिखाते हैं. नेक्स्ट, सो प्लांट ब्रीडिंग में मैक्सिमम 30 to 35 क्लासेस होंगे. प्लांट पैथोलॉजी में 45 to 50 क्लासेस होगा. माइक्रोबायोलॉजी में देयर आर 18 to 20 क्लासेस एंड सी टेक्नोलॉजी में भी 20 to 21 क्लासेस आर देयर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द माइनर सब्जेक्ट में प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन है, उसमें 5 से 6 क्लासेस मिनिमम लगेंगे. नेक्स्ट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 3 to 4 क्लासेस एंड मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी 3 to 4 क्लासेस लेंगे जो एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक्स है और इसमें क्वेश्चंस हर बार आ रहा है. ओके. एंड नेक्स्ट इन द एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स वी डील इट इन 1 or 2 क्लासेस. सो टोटल जनरल एग्रीकल्चर अगर आप पूरा का जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हो then you have to attend like 120 separate classes. So some students are actually interested in also reading the general agriculture because they want to simultaneously prepare for other exams. ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो MSc के साथ साथ अदर एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं. एंड इवन इफ यू आर इन दैट कैटेगरी यू विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट लाइक 120 क्रिस्प एंड सॉलिड क्लासेस जहां से आपको पूरा जनरल एग्रीकल्चर भी कवर होगा. बट सर प्लांट साइंस कोर्स में जनरल एग्रीकल्चर कहाँ से इंक्लूड होगा, इसका भी मैं बताता हूँ. ओके. सो नेक्स्ट, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट 10 months प्लान. आपका 10 month प्लान क्या होना चाहिए, राइट? सो नाउ लेट्स बिगिन. सी, जुलाई टू सितंबर में आपको क्या करना होगा, लाइक यू हैव टू एनरोल इनटू आवर मास्टर कोर्स में एनरोल करके आपको
लाइक 2026 का जितना भी कंटेंट हमने कवर किया है उसमें एटलीस्ट जेनेटिक्स प्लस प्लांट पैथोलॉजी को कवर करना होगा. You have to complete the genetics and plant pathology in next 2 to 3 months. जुलाई अगस्त सितंबर 3 months का टाइम है आपके पास. इन 3 महीने में कोर्स के साथ with our aggregated master course, so you have to complete this genetics and plant pathology classes once or twice with accessing the PDF. क्लास भी देखना होगा रिकॉर्डेड और आपको PDF से सारा नोट्स भी देख के रखना होगा ताकि आपका वन टाइम यहाँ से कंप्लीट हो. नेक्स्ट अक्टूबर टू दिसंबर क्या होगा? अक्टूबर टू दिसंबर, देन इन द अक्टूबर टू दिसंबर आई विल बी कंप्लीटिंग माय जेनेटिक्स. मैं जेनेटिक्स का पोर्शन दोबारा बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कंप्लीट कराऊंगा. एंड आई टोल्ड यू लाइक आई विल बी टेकिंग अराउंड लाइक 60 to 65 क्लासेस टू कंप्लीट इट. एंड ऐसा नहीं है कि हर दिन क्लास रहेगा, हर दिन 3-4 क्लासेस 3-4 घंटे, ऐसा नहीं है. I know like each one of you will be very much busy with your ELP, RAWE or any of the academic work. सब तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी तो बिजी रहेंगे. सो विल बी कीपिंग ओनली 1 क्लास पर डे मैक्सिमम. एक ही क्लास होगा, एक इंग्लिश का होगा, एक हिंदी का होगा. सो विल बी कीपिंग ओनली 1 क्लास पर डे फॉर अ स्टूडेंट, राइट? एंड विल बी कवरिंग इट इन 3 months एंड विल बी कंडक्टिंग वीकली 3 to 4 क्लासेस और 4 to 5 क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द लोड. आपके लोड कितना है तो उसके ऊपर हम 4 से 5 क्लासेस प्रॉपरली अच्छे से कराएंगे. एंड द क्लास ड्यूरेशन एज आई टोल्ड यू लाइक इट विल बी लाइक 1.5 आवर to 2 आवर. इतने में सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है? एंड द क्लासेस विल बी लाइक 2-way कम्युनिकेशन, 2-way इंटरेक्शन, जो बहुत मजा भी आएगा. कि लास्ट टाइम मुझे पता भी है स्टूडेंट्स लाइक लाइव क्लासेस लास्ट तक अटेंड किए हैं. हर एक लाइव क्लासेस को मिस ना करके बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेंड किए हैं. तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस कंप्लीट जर्नी, दैट आई कैन अश्योर यू. नेक्स्ट जनवरी से फरवरी, इस महीने में आपका प्लांट पैथोलॉजी खत्म हो जाएगा. ओके, एंड नेक्स्ट इन द मार्च वी विल बी कंप्लीटिंग द माइक्रोबायोलॉजी एंड सी टेक्नोलॉजी, राइट? सो ये जो जेनेटिक्स पोर्शन है, जेनेटिक्स पोर्शन के बीच में सो वी विल बी ऑल्सो कंडक्टिंग द प्लांट ब्रीडिंग क्लासेस इन बिटवीन. ओके, जो 3 महीने हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो 90 डेज है, 90 डेज में हम आपको प्लांट ब्रीडिंग साथ साथ में कवर भी कराएंगे जेनेटिक्स के साथ. ओके, सो दिस विल बी योर स्ट्रेटजी. नेक्स्ट मार्च के बाद अप्रैल में क्या? अप्रैल में जो माइनर सब्जेक्ट्स होंगे, जो बचे हुए माइनर सब्जेक्ट्स होंगे, सो वी विल बी कवरिंग ऑल द माइनर सब्जेक्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल में हम कवर करेंगे. एंड मई और जून में क्या होगा? सी लास्ट ईयर, अगर इस साल का आपका मई एंड जून के बारे में पता होगा कि हमने क्या किया है, इफ यू ओपन आवर यूट्यूब चैनल यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. यूट्यूब चैनल भी देखोगे या हमारे पिछले साल का कोर्स अगर एक्सेस होगा तो वो भी देखोगे, लाइक यू विल अंडरस्टैंड लाइक व्हाट वी हैव डन. वी हैव गिवन द कंप्लीट रिवीजन सीरीज इन दिस 2 months. हमने कोर्स खत्म करके नहीं छोड़ा है स्टूडेंट्स को, लाइक वी हैव डन द रिवीजन सीरीज. सो रिवीजन सीरीज में हमने क्या क्या इंक्लूड किया था? वी इंक्लूडेड 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन इज लाइक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. सो हमने जो मॉक टेस्ट थे उससे से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को उठा के डिस्कस किया है हर एक सब्जेक्ट में. देन वी वेंट विद द PYQs ऑफ एवरी सब्जेक्ट वाइज PYQs को डिस्कस किया है 2020 से लेकर लेटेस्ट तक. एंड नेक्स्ट we have given the marathon. जो मैराथन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, like there was no concept of marathon in agriculture for ICAR PG PhD exams. So we started the marathon and we successfully completed it for each and every subject. So this is what we have done in the revision series in the last 2 months. So this is the overall plan. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अप्रैल मार्च अप्रैल तक आप सिलेबस खत्म करोगे तो हम कब पढ़ेंगे? भाई लाइक जल्दी खत्म करने से ऐसा नहीं है कि आपका पास ज्यादा टाइम बच रहा होगा. See the students who start early, they get exhausted too early and in the last days they are not having that rhythm to continue it. बोर हो जाते हैं पढ़ के. So we know exact strategy. इसके बारे में आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने last 3 to 4 years में चार बैचेस को कंप्लीट किया है and we exactly know like how to do it and we have done it multiple times. So you need not to worry about it. Like हम बहुत अच्छे से slowly हर एक को साथ में लेके जाएंगे and if you are ahead of us, no problem at it. You can refer the 2026 recorded classes along with this and you can have the one more revision with us with this timeline, but this will be our timeline for the 2026 batch. ठीक है, तो इसके साथ आपका एक्स्ट्रा वर्क भी रहेगा. ऐसा नहीं कि क्लास के बाद आपका कुछ काम नहीं रहेगा. क्लास के बाद आपको PDF पढ़ने होंगे, उसके बाद डाउट्स सारे लिखना होगा, डाउट्स को क्लैरिफाई करना होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू अटेंड द मॉक टेस्ट को भी आपको अटेंड करना होगा. सो ओवरऑल कोर्स फीचर्स के बारे में अगर बताऊं तो व्हाट आर द कोर्स फीचर्स? लाइक इन दिस, लाइक एज आई टोल्ड यू, लाइक वी गिव द लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लासेस. लाइव क्लासेस देंगे, उसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी अवेलेबल रहेगा एंड देन वी प्रोवाइड लाइक PYQ डिस्कशंस प्लस सॉल्व PDFs. एंड नेक्स्ट वी ऑल्सो गिव यू द टॉपर नोट्स. टॉपर नोट्स का मतलब क्या है? जो नोट्स हमने खुद हमारे लिए बनाया था ICAR PG क्रैक करने के लिए, वही नोट्स अपडेट होके आपके पास पहुंचेगा. जो लाइव क्लास होंगे उसका PDF जो होगा, लाइव क्लास का PDF डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा कोर्स के अंदर, जो इमीडिएटली आप क्लास खत्म करके
एक्सेस भी कर सकते हो. एंड यू नो ऑलरेडी लाइक सिंस फ्रॉम द प्लान साइंस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द मटेरियल्स, क्योंकि हमने सारे बुक्स में कन्वर्ट करा दिया है. ऑल स्टैंडर्ड बुक्स और टेक्स्ट बुक्स आर अवेलेबल. यू कैन डायरेक्टली बाय द टेक्स्ट बुक्स, प्लस एडिशनली लाइव क्लास का रेफरेंस के लिए यू कैन रेफर दिस पीडीएफ्स. दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. नेक्स्ट, उसके साथ साथ so you will be getting the test series. टेस्ट सीरीज में देखो बहुत सारी चीजें हैं इसमें. You will be getting like topic wise mock test मिलेगा, and you will be getting like monthly mock test. हर एक monthly में mock test मिलेगा, and उसके साथ साथ you will be getting the full length mock test. इसके साथ आपको full length mock test भी मिलेगा, and you will also get like general agriculture mock test. See, these are the different categories of the mock test that you will be getting for your ICAR exam 2027. Okay, so apart from that you will be also getting the free. यहाँ पे देखो एक चीज मैं रिवील कर रहा हूँ, इससे मैंने पहले भी नहीं बताया था. If you take the plant science course, you are not only getting the content of the plant science, but also you will be getting the content of the general agriculture. जितने भी स्टूडेंट्स वरीड थे ना कि इस जनरल एग्रीकल्चर फिर से कहाँ से कवर करेंगे, उसके लिए भी वरी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस कोर्स के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री जनरल एग्रीकल्चर कोर्स भी दे रहे हैं. और भी कुछ है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. नेक्स्ट, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द रिवीजन सीरीज एज आई टोल्ड यू. Plus, most importantly, I know like each and every student needs like one-to-one mentorship and the guidance, because motivation is a very important part for this marathon, because 10 months is too much. 10 months में ऐसा नहीं होगा कि आप हर दिन अपना 100% देते रहोगे. कुछ ना कुछ ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आप डिप्रेस्ड होंगे, कॉन्फिडेंट कम हो जाएगा, एंड बात करना चाहोगे या डाउट्स क्लैरिफाई करना चाहोगे, इंटरेक्ट करना चाहोगे. सो वी आर ऑलवेज हियर. वी विल बी कनेक्टिंग विथ यू टू वन-on-one मेंटरशिप. सो वी विल बी गिविंग यू द एक्सेस टू द व्हाट्सएप मास्टर ग्रुप. वहाँ से भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली, जैसे लाइव क्लास में बात भी कर सकते हो. उसके बाद पर्सनल काउंसलिंग भी चाहिए, यू कैन ऑल्सो गेट द पर्सनल काउंसलिंग बाय डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग अस ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर. हेल्पलाइन नंबर भी मैं दिखा देता हूँ. ओके, so you can contact us on this helpline number. In whichever mentor you want to talk, you will be able to connect with us through this number, right? So इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो पूरा टारगेट बैच मिल रहा है, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, एंड यू विल बी आल्सो गेटिंग दिस क्रिस्प नोट्स. सी, क्रिस्प नोट्स इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. क्यों? क्रिस्प नोट सेक्शन में ऐसे चीजें होंगे जो मेमोरी बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, लेकिन रट्टा मारना होगा. उसके लिए आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि आप लिखते जाओगे, नोट करते जाओगे, बाद में रिवाइज करोगे. वो सब चीजें हम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको पढ़ के याद करना होगा. सो वी हैव गिवन दिस क्रिस्प नोट्स एंड वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग इट फ्रॉम एवरी ईयर टू ईयर. बहुत अच्छे से मटेरियल बनाया है. सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ICRPG प्लांट साइंसेस. नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू, MSc. देखो, जनरल एग्रीकल्चर जो कोर्स था ना, वो कोर्स किसके लिए यूजफुल होगा? इफ यू आर ऑल्सो वांटिंग टू राइट योर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ MSc एग्रीकल्चर के लिए स्टेट एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो, या उसके अलावा कोई भी जनरल एग्रीकल्चर एग्जाम्स आप लिखना चाहते हो, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो मैंने बताया ना, फ्री जनरल एग्रीकल्चर कोर्स. सो दिस इज दैट फ्री जनरल एग्रीकल्चर कोर्स which will be added to your entire package of plant sciences completely for free. So this is what we are going to give you at just 4,999. So how to enroll to our course? Simple 3-step formula. So it is like just download the application, or you can directly visit our website www.agriready.in. Once you visit the website, just check the course. So click on the course and complete the payment. So once you complete the payment, you will be getting a WhatsApp message from this displayed number. So go and check that WhatsApp message, click on the link, fill the registration form. So once you fill the registration form, in the same screen you will be getting the WhatsApp master group link. Click on the WhatsApp master group link and join our group. And in this entire steps, if you get any problem, directly contact us on the helpline number. जो helpline number है उसमें directly contact करके आप हमें पूछ भी सकते हो या बता भी सकते हो. जैसा helpline number है वहाँ पे आप contact कर सकते हो. There are 2 more things which are important. सर, ये सब तो सही है, लेकिन हमें पहले देखना है कि आप कैसे पढ़ाते हो. यूट्यूब में तो ठीक है, यूट्यूब में तो आपने डाल के रखा है, लेकिन यूट्यूब के अलावा भी कोर्स में आप कैसे पढ़ाते हो वो भी हमें देखना है. वी वांट टू सी द डेमो क्लासेस बिफोर यू अटेंड द एनी क्लास. तो ऐसा भी है, तो डेमो क्लासेस का भी सुविधा है. लाइक वी आल्सो हैव गिवन द डेमो क्लासेस व्हिच इज कंप्लीटली फ्री टू एनरोल. और इस डेमो क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो, स्टडी मटेरियल्स भी देख सकते हो, मॉक टेस्ट भी अटेंड कर सकते हो, PYQs का PDFs. PYQs सिर्फ और सिर्फ वीडियोस नहीं देते हैं, PYQs का कंप्लीट डिस्कशन PDF भी आपको मिलेगा. वो सब चीजें आप इस कोर्स में देख सकते हो. एंड वी हैव अ पॉलिसी, ट्राई फर्स्ट एंड एनरोल नेक्स्ट. आप पहले ट्राई करो फ्री में, अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली एनरोल करो. एंड नो डाउट अच्छा लगेगा ही, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाया है. एंड वी हैव केप्ट एवरीथिंग. सो वी हैव बीन लाइक doing this from last 4 to 5 years. Of course, you know it already, the quality. And the final slide of this entire presentation, it is about
the special reward for all the students who are enrolling to our 2027-2028 course. अगर आप 2027 या 2028 ICAR PG PhD SRB मास्टर कोर्स को एनरोल कर रहे हो एंड दिस इज रिलेवेंट, इट इज ICAR PG प्लांट साइंस, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है जो फ्री है सबके लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए जो हमारे कोर्स को परचेज कर रहा है इस साल से। आप लकी हो क्योंकि इस इनिशिएटिव को हमने इसी साल से स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज दैट? सी, यू विल बी गेटिंग अ एग्री एडिट स्टूडेंट किट as soon as you purchase the master course. उस किट में क्या रहेगा? First thing, it is about the study planner. I prioritize this part. This was a plan, a new initiative, a part of a new initiative where हम study planner as a A3 sheet में हम print करके as a sticker देंगे ताकि आप दीवार पे इसको पेस्ट कर सकोगे और इसमें पूरा सिलेबस मेंशन्ड है जो आपको कवर करना हो। तो हर सुबह आप उठ के इसको देखोगे ना, like whenever you wake up every day and you see it, you will get that motivation to complete it day by day and tick करते जाओगे, that shows like how much progress that you have made. So this is the first thing. Next, we will be also giving you a dedicated notebook of Agri Edit which will be again highly motivating because ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकता है उससे, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हेल्प भी करेगा आपको नॉलेज को इम्प्रोवाइज करने में, करियर के लिए, करियर बेस्ड चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। दिस इज अबाउट द नोटबुक। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद दैट यू विल बी ऑल्सो गेटिंग एग्री एडिट टी शर्ट। हाँ, आप टी शर्ट पहन के भी घूम सकते हो। यू कैन फील दैट प्राउड एंड बी प्राइड अबाउट ज्वाइनिंग एग्री एडिट फैमिली फॉर योर हायर स्टडीज। Okay, so this is everything about the course. I hope like you have liked this and you have understood the strategy for the 10 months and also you have understood everything about the ICAR PG master course for the plant sciences. Still, if you have any doubts, you can directly drop it in the comment sections and I will be very happy to assist. Okay, so before I conclude this topic, as I told you, I had another special gift for the students who are till now. यहाँ तक जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं ना उनके लिए और एक डिस्काउंट है। क्या है? तो कोर्स प्राइस जैसा मैंने बताया था, the course price was 4,999, right? But आपके लिए स्पेशल एक डिस्काउंट है। If you apply the coupon code of Hari PS 2027, आप इसको अप्लाई करोगे Hari PS 2027, तो आपको ये कोर्स कितने में मिल जाएगा? You will be getting another 300 rupees off, so you will be getting this course for only 3699. आपको सिर्फ और सिर्फ 3699 में मिल जाएगा, सॉरी 4699 में मिल जाएगा। ओके, सो यू विल बी गेटिंग इट फॉर ओनली 4699 एंड दिस इज अ सीक्रेट कूपन कोड जो कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, लाइक इट विल नॉट बी विजिबल एनीवेयर आउटसाइड। ओनली द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो हु हैव कम दिस फार दिस एंड will be getting to know about this coupon code. The coupon code is Hari PS 2027. Okay, I wish you all the very best for your exam. एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, इसका मतलब नहीं है कि आप लेट से स्टार्ट करो। बोलते तो है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, बट ऑल्सो इट इज नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट। कि आप डिसाइड कर लियो कि करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे एंड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम एंड विथ Agri Edit it is super easy to do it. So I wish you all the very best. So do it, and if you have any queries, feel free to contact with us anytime on the helpline number. If you want to directly talk with me, just convey the student manager whenever I am available. So I'll be talking with you. If I am not available, just convey the message on the WhatsApp. I'll reply back to you. Okay. Thank you so much for watching this video, and if you like the content, if you like the efforts, and if you are already liking our entire course of plant sciences, let me know in the comment sections. Your best wishes and supports are always needed to us. Thank you.